Hello, guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vanchika, and I'm starting a series in which I'm going to tell everything about my UK life and experiences. So, करीब एक साल तक I was staying abroad in UK, and now I think this is the right time to give something back to India, to my friends, family, and followers that I am making. It is going to cover all the mistakes that I have done in UK which you shouldn't. So let's start from scratch, everything raw and real. So, how did this thought came into my mind of going abroad and doing my masters from there? Why not India? Why not some other country? So it all began from back in 2023 when I was working in Gurgaon with a company. I met a friend there who had already planned to do her masters from UK from the University of Greenwich. So when she went there back in January 2024, I was very glorified with the UK life, and one of my really nice friends was there. So I had a curiosity of how the UK life might be there, how studying in UK might sound like, how is the life experience, culture, and everything out there. So I started doing my research about which are the best top universities in UK and what all countries should I pick. So I picked London only, but like my aim was to secure a very top university because I always scored highly, like in 10th, 12th, graduation. I had a very nice score. So I thought to enter into a university worth my score and worth my value. So I began to search about the top tier universities, and I found that in UK there is a group of universities called the Russell Group University, which is very similar to the Ivy League in US. So I started doing some research about the top universities. I got to know about the King's College London, the Imperial, the University of Birmingham, of course, Manchester University, and a lot more. So I applied to a couple of them, and I applied to about five universities. And here are the first few sets of mistakes that I did. The very first one, I did not write IELTS, which was my one of the major mistakes. So I thought that somebody told me that you will get IELTS waiver very easily because I scored very highly in 10th and 12th, especially in English, and by highly I mean 90 plus. So there was a condition that if a child is from ICSE or ISC board and they scored 90 or 95 plus in 10th and 12th, they'll get IELTS waiver for their masters in UK. So I got IELTS waiver, but this IELTS waiver was for admission and not for scholarship. So like एक तरीके से तुम समझो कि मेरा कट गया था इस चीज़ में कि मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने IELTS दिया होता सो आई वॉज वेरी वेल एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप विच आई वॉज नॉट एबल टू गेट बिकॉज मैंने IELTS ही नहीं दिया एंड थ्रू दैट 15,000 एग्जाम I would have scored a scholarship of at least 2 to 2.5 lakhs. So this was one mistake that I did. And please, if you are also planning to go to UK to do masters or any other course, let me tell you that people get 100% scholarships as well. I met a couple of friends of mine who got 100% scholarship. They were doing the process. It's a year or so. They wrote a number of letters for scholarships and मतलब थोड़ी मेहनत करी उन्होंने बट मिल जाती है स्कॉलरशिप बहुत ईजिली एंड ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग 30 lakhs and going to UK or any other country to do your masters क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं है. They don't teach, it is just the exposure that you get. So try करो इतना ज़्यादा खर्चा ना करके जाने की यूके बिकॉज चलो मैं तो लाइक माई फैमिली कुड अफोर्ड सो मैं फैमिली के बल पे गई थी बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट देयर हैवी लोन्स लेके लाइक 30-40 lakhs का लोन इवन आई नो फ्रेंड टू 45 lakhs ऑफ लोन और वो वहाँ पे गई थी एंड इट वॉज आई मीन इट्स क्रेजी इट्स इनसेन तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी यार इतना लोन पे करने में और एक साल की कोर्स करके करने लाइक आई एम नॉट एबल टू इवन स्पीक वेरी नाइसली बट एक साल का कोर्स करने के लिए इतना पैसा खर्चा करना इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट. तो मेरी तरह मत सोचना कि तुम्हें टॉप टियर यूनिवर्सिटी ही चाहिए.
यू कैन गो टू अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तुम्हें अगर अब्रॉड स्टडीज़ का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर चाहिए, एक्सपोजर इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। तो अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए तो गो टू अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी जिसमें 10-15 लाख की फ़ीस होती है, और एंड गो ओनली इफ़ योर फैमिली कैन अफोर्ड इट, एंड ट्राई फॉर स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं ईजिली। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो कि गाइड करती है अबाउट स्कॉलरशिप्स, बताती है। और इन जो कंसल्टेंट्स होते हैं, ये जो IPP करियर्स वगैरह वगैरह वाले जो एजेंसीज होती हैं, ट्राई टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देम, बिकॉज ये हमें मिसगाइड कर देते हैं। दे डोंट टेल अस आवर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्कॉलरशिप एंड अदर थिंग्स। तो ये हमें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर देते हैं, और हमें लगता है कि लाइक इट इज़ डेफिनेटली द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस। सो हमें लगता है कि दिस इज़ हाउ द थिंग्स कैन बी डन, लाइक जो ये कह रहे हैं वो सही ही होगा। लाइक टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, उनसे गाइडेंस लो, उनसे बात लो, बिकॉज दे आर paid really really heavily from the universities, like from one admission. If they like consider, if they've sent me into their university, they will get 3 to 4 lakhs just for one person, right? They are paid very high commissions for sending people to the universities. So please be aware. And now the second thing is that these agencies, they will never want you to get scholarship, because अगर तुम्हें scholarship मिला तो वो उसका पैसा उनको कमीशन में नहीं मिल पाएगा। तो समझ रहे हो? तो ऑलवेज सेल्फ अप्लाई करो। ChatGPT, यूट्यूब, a lot of AI resources, ये सब तुम्हारी मदद करेंगे for application and stuff. like like I got an agency like Leap Scholar के through. I met a really nice person on Leap Scholar जिसने मेरा acceptance में भी मदद करी। एंड क्योंकि वो अपना नाम लिख देते हैं उसके अंदर, फिर उनको लगता है कि ये एजेंसी से आए हैं, और ये जो एजेंसी से आया है उनको स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलती। जितने लोग भी, लाइक वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़, जितने लोग एजेंट्स के थ्रू आए हैं उनमें से किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो थोड़ी सी मेहनत करो, सेल्फ अप्लाई करो, एजेंट से काम मत करवाओ, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड देन मतलब बढ़िया है यार, फिर तो वहाँ पे एक्सपोजर, सारी चीज़ें, यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। जॉब्स भी भाई मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब देखो, सो मेरे पास हर तरह का एक्सपीरियंस है वहाँ पे, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू से वन थिंग देयर टू एवरी वन आई मीट इन दैट कंट्री, कि यार मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, आई एम हेयर टू मेक कनेक्शंस। ठीक है, तो बकचोदी करो, फ्रेंड्स बनाओ, पार्टी करो, घूमो फिरो, इन्जॉय करो, बट लर्निंग जो तुम्हारी होती है, कीप इट टू योर सेल्फ, राइट? चीज़ें ऑब्जर्व करते रहो, सीखते रहो कुछ। नाउ व्हाट आई हैव लर्नड इज़ कि इफ़ यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन टू फ्रेंडशिप्स एंड रोज़ पार्टी कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे काम पे, तो ही इंसान को पार्ट टाइम ढूंढना मुश्किल लगेगा। बट आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई बैच जिसको पहली पार्ट टाइम लग गई थी, एंड दैट टू इन अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो विच इज़ कंसिडर्ड लाइक अ वेरी बिग थिंग देयर, बिकॉज लोग जाते ही पहली जॉब्स रेस्टोरेंट्स में करते हैं, दैट फिर से उनको अच्छी जॉब्स मिलती ही नहीं है, मिल ही नहीं पाती हैं। तो ये सब कुछ बातें होती हैं। सो मेरे को कंट्री में लैंड करते ही विद इन 2 months आई गॉट जॉब इन अ पोस्ट ऑफिस विच इज़ वेरी नियर टू माई हाउस एज वेल। सो दिस इज़ अ थिंग। नाउ अब पार्टी भी करो, मज़े भी करो, और चीज़ें अप्लाई करते रहो, लाइक जहाँ भी तुम जा रहे हो, ट्राई टू बिल्ड सम कनेक्शंस। बाकी इंडीड वगैरह से तो अप्लाई चीज़ें होती ही हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ बहुत चलते हैं। ऑलवेज कैरी योर CV विद योर सेल्फ। और लाइक बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो तुम्हें बताएंगी, लाइक यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के बारे में तो सब बता देते हैं कि हाँ ठीक है। एक कंसल्टेंट, लाइक मैं भी इन शॉर्ट बता देती हूँ कि लाइक मेरी कंसल्टेंट ने अप्लाई किया, आई गॉट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसमें से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, जो टॉप टियर रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी थी, विच इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, बिकॉज मेरे पापा का सपना था बचपन से कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ। बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वॉज नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन टू दैट यूनिवर्सिटी। लाइक 2 करोड़ तक की फ़ीस लगती है वहाँ पे जाने के लिए, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं,
और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए. सो आई वॉज नॉट एबल टू रीच द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. तो मैंने सोचा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रसल ग्रुप. सो आई वुड बी वेरी नियर टू दैट यूनिवर्सिटी. और बहुत नाम है पूरे यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का. सो आई गॉट माई ऑफर लेटर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी. फिर कैस आ गया. कैस आने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया. वो भी एजेंसी की हेल्प में करा. एजेंसी नहीं कर दिया था. IHS हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है विच इज़ ऑफ लाइक अराउंड 1,30,000 माई टाइम. अब शायद बढ़ गया होगा. तो वो अप्लाई किया. तो करीब 2 लाख का खर्चा मेरा सिर्फ वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों में आया. फिर एक TB टेस्ट होता है जिसमें लाइक हेल्थ चेकअप टाइप का होता है. वो ये सारे टेस्ट वेस्ट इन सब चीज़ों में वीज़ा तक आने में 2-3 महीने का पूरा टाइम लग जाता है. बट द मेन प्रॉब्लम है इसकी स्कॉलरशिप में वो कोई मदद नहीं करते हैं तुम्हारी. वो बोलते हैं कि हाँ ढूंढो, इसमें अप्लाई कर दो, उसमें अप्लाई. आई अप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरी स्कॉलरशिप दैट आई न्यू अबाउट, बट दैट इट वॉज इनसेन. बहुत मुश्किल होता है स्कॉलरशिप मिलना अगर आप किसी एजेंट्स के थ्रू जा रहे होते हो, क्योंकि वो लिखते हैं देयर इज़ अ फॉर्म इन विच दे राइट कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ फ्रॉम मी एंड आई वांट द कमीशन फॉर दैट स्टूडेंट. इफ आई एम सेंडिंग उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जाहिर सी बात है एकदम ही कम हो गए. राइट. तो फिर यहाँ पे तो प्रोसेस हो जाते हैं एंड देन यू गेट वेरी हैप्पी. घर में सब भी खुश होते हैं कि हाँ यू आर एंटरिंग इनटू अ रसल ग्रुप टॉप टियर यूनिवर्सिटी जिसकी QS रैंकिंग इज़ लाइक QS रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एट दैट टाइम वाज अराउंड 40. सो विच मीन्स लाइक पूरी दुनिया की टॉप 40 यूनिवर्सिटीज़ में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम. एंड डेफिनेटली इट वॉज क्रेजी स्पेशली बिजनेस मैनेजमेंट साइड के लिए. इट इज़ वेरी नाइस. लाइक बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं. बट प्रोफेसर्स एंड एवरीवन इज़ वेरी नाइस. बट उनका टीचिंग सिस्टम ही ऐसा है कि लाइक इंडिया में हमने इतनी पढ़ाई देखी होती है और इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि वहाँ जाके वी आर नॉट एबल टू इवन रियलाइज. हमें लगता है कि यार ये पढ़ाई क्या है. तो इन माई कोर्स इन्होंने मेरा था MSc इन मैनेजमेंट. सो इन दैट कोर्स दिव जस्ट कवर्ड पाइथन थोड़ा सा. वो भी पाइथन नहीं सिखाया था उन्होंने. हाँ ऑरेंज सिखाया, थोड़ा सा टैबलो सिखाया और यही सब चीज़ें. बट लाइक मुझे एक साल में अपने आप को एकदम पॉलिश कर लेना था. सारी चीज़ें सीख लेनी थी. सो आई माई सेल्फ मैंने थोड़ा सा पाइथन भी सीखा, पावर BI भी सीखा, टैबलो भी सीखा, मार्केटिंग से रिलेटेड टूल्स भी सीखे, थोड़ी सी एडिटिंग भी सीखी. सो आई पॉलिश्ड माई सेल्फ. बट वो नहीं सिखाते कुछ. तो अगर आप सिर्फ इन्जॉय करने जा रहे हो, चिल करने जा रहे हो, कुछ नहीं सीखने जा रहे हो, दैन बढ़िया है चिल करो. मेरे दोस्त ऐसे भी थे बहुत सारे जो सिर्फ चिल करने आए थे एंड दे यूज्ड टू पार्टी एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टीज ही होती हैं एंड ये सब चीज़ें. बट लाइक फॉर मी मेरे को लाइक इन 1 ईयर मुझे अपने अंदर विजिबल चेंजेस देखने थे. मुझे सारी चीज़ें सीखनी थी. लाइक जितनी भी लर्निंग्स होती हैं, जितनी भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान को उसकी लाइफ में, मुझे सारी चीज़ें एक साल में सीखनी थी. So I though invested my time in there. I invested myself in learning everything out there. So and I am the first one to secure the job in my entire university, in my entire batch. And now like they are giving me a sponsorship as well. अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपने आज कुछ सीखा हो तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो. और आगे की स्टोरीज़ जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए. मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी अबाउट माय एंटायर UK लाइफ. और अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसके बारे में आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. बाय.